अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सानी खान इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट के साथ। इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट में हम उमूमन उन मौज़ूओं पे बातें करते हैं और वो बातें करते हैं जो बाज़ार से बाहर नहीं आती मगर बाज़ार पर असरअंदाज ज़रूर होती हैं। कोरोना से मुतालिक दुनिया में बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ पे बातचीत हो रही है। हमने बेहतर जाना कि इन बातों को ना दोहराएं और पाकिस्तान से मुतालिक उन मसाइल और उन चीज़ों का जायज़ा लें जो पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के फाइनेंशियल सिस्टम को असरअंदाज कर सकती हैं। इसी सिलसिले में हमने अमेरिका के एक बहुत बड़े फाइनेंशियल एडवाइज़र जनाब सीथ फ्रीमन से बातचीत की, जिनको एशियाई उमूर पर अथॉरिटी तस्वर किया जाता है। उनके साथ साथ हमने शरीक गुफ्तगू किया कामरान नासिर को, जो कि पाकिस्तान के एक बड़े ब्रोकरेज हाउस के सरबराह हैं, और साथ ही हमने शरीक गुफ्तगू किया मोहम्मद आसिम को, जो कि MCB आरिफ हबीब फ़ंड के चीफ़ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं। अच्छा देखिए, मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और आप लोगों को बताता चलूँ, आई थिंक दैट मे बी ऑफ इंटरेस्ट टू यू, कि सीथ फ्रीमन साहब वही हैं कि जिन्होंने हिंदुस्तान का पहला ETF जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्च हुआ, उसकी कंसल्टेंसी में उसकी जो बेसिक वर्किंग थी उसमें सीथ फ्रीमन का जो है वो एक बड़ा अहम रोल था और बड़ा किरदार था। और वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट से मुतालिक ये ब्लूमबर्ग पर इजहार ख्याल भी करते रहते हैं। मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार में इनका एक अहम रोल, अहम हिस्सा होता है। और आज हमने जो इनसे गुफ्तगू की है उसका मकसद भी यही है कि चूँकि इनकी एशियाई उमूर के साथ पाकिस्तान और हिंदुस्तान की मईशतों और मार्केटों पर एक अच्छी नज़र है, तो हमने समझा कि ये बेहतर होगा कि इनका एक इंटरनेशनल ओपिनियन लिया जाए और फिर उसको जेल किया जाए कि जो हमारे लोकल एक्सपर्ट्स हैं वो इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं और आगे के लिए क्या प्रपोज़ करते हैं। सो मिस्टर फ्रीमन, how do you look at the conspiracy theories that China is behind the spread of COVID-19? We look at the attitude of the France, Germany and US. It is surprising to note that US has said that it may consider cancelling the debt obligation worth $20 trillion which it owes to China. So Germany has followed it, France has followed it, and India has also joined these nations in maligning the China. So do you think this is the right approach of some Western nations? And do you buy this argument that this is a kind of economic war? Well, clearly this is a global public health problem. This is a health crisis. And it's, in my opinion, it's just a shame that it's being politicized, viewed as, by certain politicians as some form of conspiracy or some kind of contrived economic situation. This issue of penalizing China on the basis that somehow they withheld information that could have prevented such tremendous global problems has not yet been confirmed. There are talks that this virus could continue for months, rather a year's time. So are you amongst those who think that this virus will continue to haunt the world economies in the second half of the 2020? Well, the problem here is there are so much unknowns. We're really in new territory where we have businesses across the globe forced to shut down, people forced to stop working. This is causing tremendous suffering. At the same time, we also don't really know to the extent that this virus
is going to continue? Is it going to subside? At least here in the United States, one of the big issues is to the extent testing is available so that we can find out who has coronavirus, COVID-19, and prevent broader infections. Concerns about returning back to greater interaction among people. You know, this is a disease that you can't see. It's not like a car accident. Just the few days of the March has dragged the world GDP into the negative zone. If this situation lasts for a longer time, then how do you look at the South Asian economies and the country like Pakistan? How badly are they going to be affected? The problem here is that developed countries are going to be focusing on fixing themselves. And as you know, many South Asia countries, Bangladesh, Pakistan, India, so forth, are exporters to consumers, whether it's apparel, other products coming from this region. And I would imagine that sales in developed countries will be low for an extended period. And so that's going to really impact the export-oriented businesses in these countries. How do you look at the South Asian economies? How do you compare the Vietnam and the China? How do you compare India and Pakistan? Which economy you think would be able to come back quickly? Well, I would say that probably the more developed Asian countries will recover the fastest. You know, to the extent that food is exported by countries in South Asia, I think demand for agricultural products from those countries will be slow to return to normal. So I'm trying to think of one, you know, if there's one country that may do better than others, although it's relatively small but fast growing, is Vietnam, for both strategic reasons as an alternative to China, and also because of the goods that are exported from Vietnam. Prior to this COVID-19, the US used to call China a currency manipulator. You think once this COVID-19 phenomena is over, things will get back to the previous situation? Well, this is very complicated because, in particular, the U.S. agricultural industry was already having economic problems, financial problems in the whole industry, and had been exporting a tremendous amount to China. The trade war resulted in China reducing its purchases quite a bit. The president announced, I think it was a $50 billion trade deal with China. China needs the food, and it's having its own problem with the pork industry and domestic pork industry. And the U.S. agricultural industry is going to be highly dependent upon exports to recover from COVID-19. So you've touched on an extremely difficult political problem. Mr. Freeman, the 20% of the world oil is said to be floating in the shores of California where you live. So when do you think this storage problem will be addressed? Well, not only is oil floating on the sea in ships, but it's also being literally stored in pipelines. We are out of storage for new oil. And this is such an extreme decline in demand that could ever be imagined here in the U.S. and globally. It's going to take a long time to wear off that extra supply. In the U.S.,
a lot of our new oil extraction has come from horizontal drilling called fracking. Right. The timing of Saudi Arabia and Russia expanding their production levels right just before COVID-19 really broke out was very ill-timed. The impact on oil for oil importing countries like Pakistan, India, and others is, you would imagine that would be good because the cost, the balance of trade, and so forth would be fixed. But this is having tremendous impact on the refinery industry in each country. And so this can have some negative domestic impact in spite of lower oil prices. Mr. Freeman, do you think that Saudi Arabia might end up being a debt-ridden state post-COVID-19? And you see some more influence of the Russia coming to OPEC? Well, you know, it's OPEC plus one. And I don't know how this is going to change the relationships between the countries. But certainly the fact that the cost of oil versus the historic selling of oil below cost, that spread is going to narrow very much. And I think we're going to see sustained low oil prices for some time. I can tell you here, it's hard to imagine, perhaps in Pakistan, we purchase petrol, gasoline, measured in gallons. Yep. And more recently, gas for my car was nearing $4 a gallon here in California. It's down to $2.89 in about 6 weeks. And I was in a different state where there's lower taxes and surcharges. You can purchase a gallon of petrol for about $1.68. So you can see the impact. Mr. Seth Freeman, we have seen that the G20 countries have offered debt relief, whereas a number of economies has offered stimulus packages. You think that these kind of measures have some kind of role in reviving and rejuvenating the economies? In the near term, yes, it's vital that these programs be rolled out. However, what's going to happen in terms of paying back all this money? It's inherently inflationary, but in the near term, it's critical at a global level. So finally, in these tough days of little or no liquidity in some of the underdeveloped markets, and at a time when we can see the outflows. So given these situations, what is your message to Pakistani authorities, Pakistani regulators, Pakistani government, and what would you like to say to the US investor who is eyeing and looking at to invest into the Pakistani market? Well, you and I have known each other a long time. Yep. And have shared many ideas about the opportunities for foreign investors, foreign money flows coming into Pakistan. Right. There's very limited avenues for at least U.S. investors to actively invest in the Pakistani market. And the relationships between investment bankers and so forth, I think, with their counterparts between the U.S. and Pakistan is relatively limited. Obviously, there's great potential opportunity to increase money flows, but there also needs to be a high level of confidence in oversight
regulation, enforcement, transparency, and also a certain, in terms of shares, there has to be a certain level of liquidity and tradable shares, Right. because in order to attract portfolio investors, private equity investors who have a longer term view may not be so dependent on liquidity, Right. but their concern would be exit. Yes. How do you exit a private equity investment in Pakistan? Mr. Freeman, thank you very much for taking out time and sharing your views with our viewers. Thank you very much. Have a nice day. Let's take a short break. प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमने सीथ फ्रीमन से बातचीत की और उन्होंने बैनुल-अक़वामी पर्सपेक्ट में बताया कि कोविड-19 के पाकिस्तान पर किस तरह के असरात पड़ने जा रहे हैं, और उन्होंने जो सबसे ज़्यादा काम की बात बताई वो ये थी कि लिक्विडिटी के इस चैलेंज में पाकिस्तान के रेगुलेटर्स और स्टेक होल्डर्स अगर प्राइवेट एक्विटी फंड्स की तरफ नज़र इनायत करें, उसकी मार्केटिंग करें, उसकी रेगुलेशंस को एक दफ़ा और अगर देखें, तो फिर ये वाला मसला ज़रूर हल हो सकता है कि लिक्विडिटी की वजह से आपके पास महीनों इंटरेस्ट नहीं रहता, मार्केट में ट्रैक्शन नहीं रहती, ये वाले मसाइल एड्रेस हो सकते हैं। क्योंकि उन्होंने इस बात पर बहुत ज़ोर दिया और कहा कि जो प्राइवेट एक्विटी फ़ंड लॉन्च करने वाले लोग होते हैं वो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की उनको परवाह नहीं होती, वो तो किसी वैल्यू चेन देखते हैं और वो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर देते हैं। दे आर लीस्ट बॉदर्ड कि 2 महीने 4 महीने 1 साल में किस तरह की प्राइसेस रहने जा रही हैं, वो 10 साल के व्यू पर आते हैं। सो फंड मैनेजमेंट से रिलेटेड बातें और फंड मैनेजर्स बाज़ार को कैसे देखते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स को कैसे देखते हैं, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने मोहम्मद आसिम से रिक्वेस्ट की कि वो आज इस तज्ज़िये में हमारा साथ दें। मोहम्मद आसिम, मैं बताता चलूँ कि CIO हैं MCB आरिफ हबीब फ़ंड के। आज हम इनसे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि सीथ फ्रीमन तो बैनुल-अक़वामी कॉन्टेक्स्ट में बता रहे थे कि पाकिस्तान पे किस तरह के असरात पड़ सकते हैं। मोहम्मद आसिम और कामरान नासिर से हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे, एक ब्रोकरेज साइट से हमें व्यू देंगे और दूसरे मोहम्मद आसिम जो इस वक्त हमारे साथ हैं, वेलकम टू द शो, ये हमें बताएंगे कि पाकिस्तान की जो कैपिटल मार्केट है इसमें किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, सरमायाकार को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, रेगुलेटर को किन किन चीज़ों की तरफ निगाह डालने की ज़रूरत है। तो पहली चीज़ जो कामरा इनसे मोहम्मद आसिम से पूछेंगे वो ये है कि जो लॉकडाउन की बातें हो रही हैं कि ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है, एज अ फंड मैनेजर व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान की मईशत कितने अरसे तक लॉकडाउन को सह सकती है, उसमें सकत है बर्दाश्त करने की? प्लीज़। जी सानी, देखिए ये हर कंट्री के लिए एक बहुत ही एक्सपेंसिव और डिफ़िकल्ट चॉइस है कि लॉकडाउन को कितना एक्सटेंड किया जाए। इवन डेवलप मार्केट्स भी इसको एज अ स्टॉप गैप मेजर ही देखती हैं विद एन एफर्ट टू बिल्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कि उधर क्वेश्चन क्रिएट हो जाए, टेस्टिंग बैकअप हो जाए और फिर उसके बाद डिसिप्लिन ग्रेजुअल मैनर में वो इकोनॉमीज को ओपन करने का प्लान करती हैं। ट्रेड बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाएगा। एज आई सेड कि जो GDP ग्रोथ हम नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव क्लोज टू 2%, शायद वो भी नेगेटिव हो जाएगी। इन रियल टर्म्स हम 3-4% नेगेटिव GDP ग्रोथ की बात कर रहे होंगे, बट होपफुली आई थिंक बिकॉज दैट इज वेयर जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट सिग्निफिकेंटली होगी। आई थिंक उतना एक्सटेंडेड लॉकडाउन टिल सितंबर अफोर्ड नहीं कर सकता। We would need to, while balancing the risk, we will need to open economy somewhat while managing Right. जी Asim, I concur with your views that smart lockdown is the only way forward. But what is it that is positive too in this situation? मसलन तेल के सस्ते होने में भी तो कोई मईशत के लिए अपॉर्चुनिटी है या नहीं?
जी ऑफ कोर्स देखिए जो ऑयल बिकॉज पाकिस्तान ऑयल एक मेजर कमोडिटी है, हमारी इम्पोर्ट कमोडिटी है, तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उससे सिग्निफिकेंट बेनिफिट होगा। तो जो हमारे एस्टिमेट्स हैं कि ऑयल प्राइसेस थोड़ी सी रिकवर होंगी एंड वी एक्सपेक्ट के नेक्स्ट फिजिकल ईयर अगर $35 के आसपास रहती हैं तो हमारा ख्याल है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है $2 बिलियन के करीब का पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इम्पैक्ट आएगा, वाइल इनकॉर्पोरेटिंग समवॉट एडजस्टमेंट नेगेटिव टू रेमिट। हमारी अजम्पशन ये होगी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी हद तक रिवाइव होगी, ऑल्दो स्ट्रक्चरली पाकिस्तान रिलेटिवली थोड़ा बेहतर है इन द सेंस कि एक गुड पोर्शन हमारी जीडीपी का एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से रिलेटेड है, और हमारी जो स्मार्ट लॉकडाउन की हम अजम्पशन कह रहे हैं जिसमें हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑनलाइन रहती है, हमारी एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्रीज और जो लोकल इकोनॉमी है एक्सेप्ट फॉर सेक्टर्स जिनमें हाई रिस्क है, जहाँ क्लस्टर्स हैं, उधर हम अगर कट डाउन करके इकोनॉमिक एक्टिविटी को रन करते हैं तो भी नेट बेसिस के ऊपर अपनी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें सेविंग देख सकेंगे, प्लस अलॉन्ग विद दैट जो इम्पैक्ट ऑन ऑयल प्राइसेस का, लोअर ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट इन्फ्लेशन की सूरत में नजर आएगा। तो इस साल की एवरेज इन्फ्लेशन कोई 11% के करीब होगी, लेस देन 11%, जबकि नेक्स्ट ईयर अगर ऑयल प्राइसेस भी $35 से भी रहें तो हमारा ख्याल है कि किसी इन्फ्लेशन होगी। ऑलरेडी सीन 4.25% का हमने इंटरेस्ट रेट कट अभी ऑलरेडी देखा है, एंड आई थिंक मोर कट्स विल फॉलो क्योंकि ऑयल प्राइसेस रिमेन लो और इकोनॉमिक एक्टिविटी ग्रेजुअल ओपन अप होती है। Yes, Mr. Asim, I concur with your views, but I think तेल का सस्ता होना भी तो एक अपॉर्चुनिटी है। इस क्या मईशत पर क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है? देखिए एक डेलिकेट बैलेंस जरूर मेंटेन करना होगा, बिकॉज इस एनवायरनमेंट में गवर्नमेंट के अपने फिस्कल रेवेन्यूज और अपने फिस्कल अकाउंट्स भी बहुत अंडर स्ट्रेस हैं। सो अगर हम सारा बेनिफिट पास ऑन कर देंगे ऑयल प्राइसेस का तो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज के ऊपर रेट आएगी, तो फिर गवर्नमेंट की बोरिंग नीड्स और फिर वो फिर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सूरत में नजर आती है। तो दूसरी चीज़ हमारी जो एनर्जी चेन है वो इस वक्त सिवियरली ट्रिपल्ड है बिकॉज ऑफ सर्कुलर डेट, और इट्स नॉट मैनेज्ड वेल इन टर्म्स ऑफ इट्स एन अपॉर्चुनिटी के बहुत लोअर ऑयल प्राइसेस हैं, तो किसी हद तक वो जो पोर्शन है उसको रूट किया जाए टुवर्ड्स एड्रेसिंग दी इनएफिशिएंसीज इन दी एंटायर एनर्जी चेन, बिकॉज दिस हैज बीन अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान एंड लो ऑयल प्राइसेस गिव यू एन अपॉर्चुनिटी कि थोड़ा सा उधर का पोर्शन इन inefficiencies को एड्रेस करने के लिए। See, last night I was talking to a fund manager who said that liquidity is a challenge, and in the days of little or no liquidity, private equity fund is the only way forward. Are we sane? Why are we not looking into, or do we have a different scenario altogether in our market? जी देखिए ऑब्वियसली प्राइवेट इक्विटी का फ्यूचर पाकिस्तान में भी पॉजिटिव होना चाहिए जैसे ग्लोबली है बिकॉज ऑफ हायर रिटर्न्स एज वेल, बट एज आई सेड कि इवन पाकिस्तान में तकरीबन सारी हमारी जो कैपिटल मार्केट्स हैं वो भी कोई खास ग्रो नहीं कर पाई, जिसके रीज़न इज तो ओवरऑल आई थिंक इन्वायरमेंट है जिसमें टुवर्ड्स रिस्की इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स की एफिनिटी कम है। उसके अलावा जनरली भी हमने देखा है कि बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रिस्क अवर्जन रही है, सो वी हैवंट सीन कोई बहुत सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन दी इकोनॉमी। बैंकों के चाहे एडवांस डिपॉजिट रेशियोज हो उधर भी नजर आती है रिस्क अवर्जन, प्लस गवर्नमेंट हैज बीन द लार्जेस्ट बोरोअर, प्लस जो गवर्नमेंट के पिछले सालों में जो IPP के प्रोजेक्ट्स हैं, ओवरऑल गारंटीड रिटर्न के प्रोजेक्ट्स हैं, जो ओवरऑल एफिनिटी है टुवर्ड्स रिस्की इन्वेस्टमेंट, रेस्ट ऑफ द रिस्की इन्वेस्टमेंट तो ऑब्वियसली कम होती है। But as situation improves, only then I think private equity market obviously will grow, और especially ये जो आजकल technology और e-commerce platforms हैं, they have started to tap international markets, angel investors के through. I think वो avenue private equity के लिए भी एक अच्छा avenue है और उधर future में potential है पाकिस्तान में। देखिए इन हालात में जब Amazon का जो मालिक है वो एक दिन में उसकी वर्थ $5-6 बिलियन से बढ़ जाती है, जूम की प्राइस पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाती है, हमारी बाज़ार में 4-6 स्टॉक्स ही तो हैं इंटरटेनमेंट और टेक्नोलॉजी के। सो मुझे नहीं नज़र आता कि एक आम इन्वेस्टर के लिए इन हालात में बाज़ार में कुछ है भी। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? जी ऑब्वियसली एज आई सेड कि अगर बेहतर होगी उन्हीं सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट आएगी, जैसे हमारी जो स्टॉक मार्केट है एज आई सेड कि अगर ऑयल प्राइसेस स्टेबल हैं
हमारी जो सेक्टर्स लिस्टेड हैं जैसे हमारे बैंक कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर है, दैट लुक्स वेरी वेल कैपिटलाइज्ड, बट ऑब्वियसली एक लिमिटेड स्ट्रेस तक ही वो चीज़ें एब्जॉर्ब हो सकती हैं। अगर एक थ्रेशोल्ड से बियॉन्ड चीज़ें जाती हैं तो उसका इम्पैक्ट हर तरह के मार्केट्स के ऊपर आएगा, स्टॉक मार्केट के ऊपर भी आएगा, ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट पे आएगा। अच्छा, ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगा आसिम, मईशत के ऊपर, मार्केट आउटलुक के ऊपर आप अपने व्यूज़ दे दें। जी देखें, सारी दुनिया में एनवायरनमेंट और अनसर्टेनिटी अपनी पीक के ऊपर है कि हाउ विल द वर्ल्ड थ्राइव, हाउ विल द होल ग्लोबल इकोनॉमी जो कि पहले बहुत ही इंटरकनेक्टेड थी, कहीं हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म और इंटरनेशनल ट्रेड के इशूज किस तरीके से सेटल होते हैं। और सेकेंडली अगेन बिकॉज ऑफ लोअर ऑयल प्राइसेस कुछ इकोनॉमीज के ऊपर ऑब्वियसली जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमीज में भी एक सिग्निफिकेंट चेंज है। सो ये जो इन्वायरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी है, ऑब्वियसली इसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस पाकिस्तान के लिए भी क्रिएट होते हैं, एंड स्पेशली फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ वी डील विद कोविड, बिकॉज रिसेंटली हमने देखा है कि ग्लोबली जो बड़ी इकोनॉमीज हैं जिनमें कोविड बहुत तेज़ी से स्प्रेड आउट हुआ था, उसमें बहरहाल पीक होके उसका स्प्रेड एटलीस्ट कम होना शुरू हुआ है, which gives some comfort to them। लेकिन पाकिस्तान में हमने देखा है कि जो हमारा रेट है स्प्रेड होने का, ऑल्दो पाकिस्तान स्टिल हमारे यहाँ अभी भी रिलेटिवली स्पीकिंग इतनी ज़्यादा अफेक्टेड नहीं है, बट स्टिल जो हमारा रेट है वो है अलार्मिंग है। सो हम किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को, बिकॉज वी ऑल्सो नीड टू कम बैक एंड लेट अवर बिजनेसेस रन, लेट अवर इकोनॉमी व्हाइल मैनेजिंग द रिस्क ऑफ स्प्रेड ऑफ कोविड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक डिटर्मिनेंट होगा इवन इक्विटी मार्केट्स के लिए भी, ऑल्दो हमारी इक्विटी मार्केट्स इस वक्त रिलेटिव टू हिस्ट्री आई थिंक काफ़ी चीप है, बट जो रियल रिटर्न्स हैं या इकोनॉमी में या मार्केट्स के, वो डिपेंडेंट होंगे कि इकोनॉमिक सिचुएशन किस तरह है। आसिम, आपका वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, लेट्स मीट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। देखिए, हमने प्रोग्राम के शुरू में सीड फ्रीमन से बातचीत की, फिर मोहम्मद आसिम से बातचीत की, और अब हम गुफ्तगू कर रहे हैं कामरान नासिर साहब से। ये जेस ग्लोबल के CEO हैं और इनकी जो रिसर्च है उसकी रैंकिंग के लिए भी एक से ज़्यादा मरतबा इनके हाउस को अवार्ड मिल चुका है। सो कामरान नासिर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया सानी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेलकम। कामरान साहब, अभी एक बड़े शदोमत से सारी दुनिया में बातचीत छिड़ी हुई है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती दुनिया की जो मईशत है उसका पहिया नहीं चलेगा, वर्ल्ड विल रिमेन सेमी नॉर्मल। पाकिस्तान में ये फिनोमेना अगर कंटिन्यू करता है फॉर नेक्स्ट 3 to 6 months, where do you think we would stand? Where would our systems, financial systems, economy and capital market would stand? बहुत अच्छा सवाल किया सानी आपने, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में है वो यही है कि अगर पेंडेमिक ज़्यादा लास्ट कर गया तो उसके नताइज क्या आएंगे। देखें, जो आपने जुमला इस्तेमाल किया सेमी नॉर्मल का, उसको मैं थोड़ा चेंज करके ये कहूँगा कि पाकिस्तान एक न्यू नॉर्मल में चला जाएगा और दुनिया भी एक न्यू नॉर्मल में जाएगी। बिकॉज लॉकडाउन से परसिस्ट करना आप एक हद तक तो कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड उसको जारी रखना जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे बहुत नेगेटिव आना शुरू हो जाता है। अगर आप देखें कि वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स आ रहे थे कि 1.5% से आपकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी करंट ईयर के अंदर, और अगले सालों में भी उनको बहुत ही माइनर सा आपको GDP ग्रोथ रेट नजर आता है। और वो भी उस सूरत में नजर आता है कि उनकी एजम्पशन भी ये है कि मे बी बाय मई एंड और जून आप किसी अच्छी सूरत हाल में पहुंच जाएंगे। अब इसी सिचुएशन को आप ये ले लें कि अगर आपने इसको 3 महीने से 6 महीने कर दिया या 6 महीने से 9 कर दिया, तो आपकी इकोनॉमी उसी हिसाब से फर्दर नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट करेगी। और पाकिस्तान के अंदर देखें जो फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं वो काफी हद तक इंटैक्ट रहेंगे, उसमें इतनी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि एक जो गुड साइन हमने इसके अंदर देखा है वो ये देखा कि वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट ये तमाम कंपनीज ने एम्ब्रेस भी किया और बड़ा सक्सेसफुली इसको रन भी किया। सो टेक्नोलॉजी हैज टेकन ओवर। इस टेक्नोलॉजी का फायदा ये है कि कैपिटल मार्केट्स बिजनेस, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ब्रोकरेज हाउसेस
उसके अलावा कमर्शियल बैंक्स, आपकी जितना भी फाइनेंशियल सिस्टम है, उसने वर्क फ्रॉम होम में ऑपरेट करने को एक्सेप्ट भी किया और उसको करके भी दिखाया। But brother, I have to make a point here before you complete your answer. अगर स्टॉक मार्केट तो रिप्रेजेंट करती है कि फाइनेंशियल मार्केट वही बताती हैं जो इकोनॉमी में हो रहा होता है। मईशत का पहिया अगर नहीं चल रहा ब्रदर कामरान, व्हाट वुड द कैपिटल मार्केट्स रिफ्लेक्ट? एब्सोल्युटली, देखिए जब मईशत का पहिया एक ड्रैग होना शुरू होगा ना, अभी देखें पॉजिटिव सेंटीमेंट क्यों हुआ, उसकी बड़ी सिंपल वजूहत है। नंबर 1 कि आपने एक पैकेज अनाउंस किया, उसके बाद आपने इंटरेस्ट रेट्स कम किए, उसके बाद आपको एक रैपिड फाइनेंसिंग मिल गई। तो और चौथा इम्पैक्ट यह था कि आपकी एक्सपोर्ट्स जिस क्वांटम से गिर रही हैं या जिस क्वांटम से आपकी रेमिटेंसेस गिर रही हैं, ठीक है, उससे ज्यादा क्वांटम से आपकी इंपोर्ट्स गिर गई हैं। तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इफेक्ट जो है वो न्यूट्रल टू पॉजिटिव आया। बिल्कुल ऐसे। अब इसी चीज को अगर जिस तरह आपने कहा ना कि 3 महीने से बियॉन्ड देख लें कि 6 महीने हो गया और आपको पता चला कि आपके केसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं या हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट आना शुरू हो गया, तो आपके स्टॉक एक्सचेंज में एग्जैक्टली वही रिफ्लेक्शन आ जाएगी जो आपने बात कही। उस केस में आप एक डाउनवर्ड स्पाइरल में जाएंगे और जाने की वजूहत खासतौर पे उन कंपनीज में होंगी जो कि लेबर इंटेंसिव हैं या जो कि डायरेक्टली डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड है। अब जहां कहीं पे डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से आपकी सप्लाई साइड कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, आपकी मैन्युफैक्चरिंग पे उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आ जाएगा और आपको एग्जैक्टली वो रिफ्लेक्शन जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगी इन योर स्टॉक मार्केट इंडेक्स। यही चीज अगर आप बाहर देखेंगे यूएस की मार्केट्स में, यूके की मार्केट्स में, मार्केट्स के चलने की प्रेडोमिनेंट जो वजह है कि हर एक ने इकोनॉमी के अंदर स्टिमुलस ऐड किया। वो स्टिमुलस था इन फॉर्म्स ऑफ पैकेजेस, इन फॉर्म्स ऑफ लिक्विडिटी, इन फॉर्म्स ऑफ जो मॉनेटरी ईजिंग की गई और जिस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटीज दी गई। सर्टेनली वी आर अवेयर और मेरा ख्याल है मार्केट चलती ही सेंटीमेंट के ऊपर है। आप देखेंगे जिस टाइम सेंटीमेंट नेगेटिव हुआ तो मार्केट ने 43,000 से कॉन्ट्रैक्ट करके 27,000 दिखाया आपको। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। 27 पे जाने के बाद दोबारा से एक एंटिसिपेशन बनी कि गवर्नमेंट इज पिचिंग इन आपका इंटरेस्ट रेट क्योंकि इतना घटाया गया और मैक्रो साइड के ऊपर भी बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है क्योंकि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा ज्यादा आउट हो जाए तो हमारी इकोनॉमी पूरी की पूरी ट्रबल में चली जाती है। हमारे में शॉक अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा नहीं है। तो ये सारा का सारा जो इस वक्त मंतक जो लॉजिक घूम रही है ना, वो याद रखिए कि आपकी घूमी इस बात पे रही है कि आपके जो फॉरेन रिजर्व हैं वो बहरहाल इंटैक्ट रहेंगे। द मोमेंट ये चीज बदल जाएगी तो आप पे प्रेशर जो है वो इन्फ्लेशनरी साइड से, करेंसी डीवैल की साइड से एंड फ्रॉम ऑल अदर एस्पेक्ट्स वो बड़ा सिवियर बन सकता है। मेरा ख्याल है कि ये चीज हमारे नॉलेज में भी है। मेरा अक्सर डिसएग्रीमेंट होता है बहुत सारे इकोनॉमिस्ट से इस बात के ऊपर कि जब वो हर चीज को रोजी देखते हैं, इसमें रोजी आप देखें तो किसी सेट ऑफ एजम्पशंस पे देखें और अगर आपने अपने इन्वेस्टर्स को भी गाइड करना है तो सेट ऑफ एजम्पशंस ये होनी चाहिए कि अंडर द करंट सिचुएशन जहां नजर आ रहा है कि दुनिया स्ट्राइव कर रही है कि वो लॉकडाउन से बाहर निकले, मुआशी पैकेजेस भी दे दिए। इसकी फ्लिप साइड ये है कि 3 महीने में आपने सेमी लॉकडाउन की सिचुएशन में चले गए, फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता उठा लिया और उसके बाद पेंडेमिक दोबारा से गिरफ्त कर गया और आपको दोबारा लॉकडाउन में जाना पड़ा, तो आपका सारा थीसिस जो है वो चेंज हो जाएगा। अंडरस्टूड। अच्छा कामरान साहब, ये भी ज़रा बताइए कि अगर बहुत सारे कारोबारों के लिए कहा जा रहा है कि वो अब उस तरीके से दोबारा नहीं चल सकेंगे जैसे पहले चलते थे, मसलन एयरलाइन से हमने देखा कि बफेट ने पैसे निकाले तो मार्केट टैंक कर गई यूएस की। फिर हमने देखा कि बहुत सारे इकोनॉमिक साइकिल्स सब कह रहे हैं कि वो कंक्लूड हो जाएंगे, वो बिजनेसेस दोबारा से मैदान में आ ही नहीं सकेंगे। बाज़ार को आप कहाँ देखते हैं? पोस्ट MSCI अपग्रेड हमने देखा कि जेस वाज हाउस जिसने $1 बिलियन तक के जो सौदे हैं वो सेटल किए हैं, सो दैट वाज फैंटास्टिक। डू यू सी दैट हैपनिंग अगेन इन नेक्स्ट 2, 3, 4, 5 हाउ मेनी ईयर्स वुड इट टेक? देखिए नहीं, इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम दोबारा से वहां पे जाने के लिए। और मेरे ख्याल में जिन सेक्टर्स की आपने बात की है, सर्टेनली अगर मैं उसको शॉर्ट से मीडियम टर्म में देखूं, अगर वैक्सीन नहीं आती तो वो सेक्टर्स जो हैं वो बहुत बुरे तरीके से मुतासर रहेंगे क्योंकि एयरलाइन की तो सारी इंडस्ट्री या टूरिज्म की इंडस्ट्री जो इंटरनेशनल टूरिज्म है, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द लोकल टूरिज्म, इसमें सिल्वर लाइनिंग ये है कि अगर आपकी थोड़ी बहुत भी कंट्रोल एक डेवलप होती है तो आपका लोकल टूरिज्म बढ़ जाना चाहिए
बिकॉज पीपल विल लुक फॉरवर्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज कि वो अपनी फैमिली के साथ कहाँ जा सके। इंटरनेशनल ट्रैवल पे क्या बैन लगेगा, क्या नहीं होगा। और पाकिस्तान की खुशकिस्मती ये है कि लार्जली आपकी इकोनॉमी डोमेस्टिक है। बिल्कुल सही। सो जब डोमेस्टिक इकोनॉमी है, वो डोमेस्टिक कंजम्पशन पे, डोमेस्टिक डिमांड पे, डोमेस्टिक सप्लाई पे इतना ज्यादा रिलाय करती है, जहाँ पे फूड स्केर्सिटी नहीं है आपके पास, तो हमारी जो सबसे अच्छी बचत है वो इसकी वजह से है। सेकेंडली, जिन सेक्टर्स की आपने बात किया, शॉर्ट से मीडियम टर्म में तो सर्टनली बहुत प्रेशर रहेगा, मगर कोई भी जजमेंट देने से पहले हमें ये याद रखना चाहिए कि दुनिया इस चीज को काउंटर करने के लिए जो अगर ये गिरफ्त पकड़ती जाएगी तो आपके जो आगे से काउंटर एक्शन आएंगे वो भी गिरफ्त पकड़ते जाएंगे। राइट। और आपको क्या लगता है कितने अरसे तक फॉरेनर्स उसी तरीके से दोबारा इंथुजियास्ट और एक्साइटमेंट दिखाएंगे पाकिस्तानी बाज़ार के बारे में, जैसे 2017 में था, थोड़ा सा उससे पहले था? देखिए, फॉरेनर्स के लिए सबसे पहले जो एक चीज़ है ना सानी, वो मैं हमेशा कहता हूँ कि फॉरेनर्स आर द लास्ट वंस कि जिन्होंने आपकी मार्केट में आना है। राइट। ठीक है, और वो आपके एंथुसिज्म पे आएंगे। जब तक डोमेस्टिकली आप अपनी मार्केट्स को चलाएंगे नहीं, उसमें अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे, तब तक वो उनके आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने अपनी सिचुएशन भी देखनी है कि वहां पे इक्विटीज में कितना दम है, कितना चार्म है। उसके बाद अल्फा हंटिंग के लिए वो तब बाहर निकलेंगे जब वो ये देखेंगे कि इस मार्केट में, इसकी लोकल इकोनॉमी में इतना दम है कि वो सस्टेन भी की है और मल्टीपल्स वैसे ही बहुत चीप है, और उस चीप मल्टीपल्स में उन्हें अट्रैक्शन नजर आएगी। तो ये आंसर जो है इसका सीधा जवाब नहीं है, इसका जवाब एक से दूसरे फैक्टर पे मुहित है। नंबर वन कि आपकी इकोनॉमी सस्टेन करके दिखाए, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है। आई एम नॉट सेइंग कि आप दिखाएंगे, इट विल रिमेन अ चैलेंज। दूसरी बात यह है कि आपके डोमेस्टिक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इतना रहे कि बाजार इतनी सस्ती है कि 6 साढ़े 6 के मल्टीपल पे मुफ्त बाजार है इस वक्त, आराम से 45 से 50 हज़ार के इंडेक्स में ये जा सकती है। वो कॉन्फिडेंस के मुताबिक आपका डोमेस्टिक प्लेयर उसके अंदर पार्टिसिपेट करे, देन इट विल बी द फॉरेनर विच विल ऑल्सो डिपेंड कि उनकी अपनी इकोनॉमी के हालात क्या है। अगर उनकी अपनी इकोनॉमी के हालात ये होंगे कि उनको इक्विटी से एक्सोडस करना है और उससे बाहर निकलना है और वहां पे सेफ हेवन के अंदर पैसे डिप्लॉय करने हैं कि ट्रेजरीज में रख दिए, दाएं बाएं रख दिए, तो फिर जब तक उनका साइकिल चेंज नहीं होगा तब तक आपके पास अट्रैक्शन होना वो मुश्किल होगा। आई थिंक कामरान साहब, आई हैव टू ऐड वन थिंग हियर कि अभी 50,000 लोगों के तो अकाउंट आपने बंद किए हैं फेटिफ के डंडे के ज़ोर पर। अब जब आप कह रहे हो कि बाहर के सफ़र नहीं होंगे, बाहर की इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, बाहर के लोग आपकी तरफ नहीं देखेंगे, तो हमें भी बाहर की परवाह थोड़ी कम करनी चाहिए। इस सतह पर, लेवल पर कोई सोच विचार, दिमाग का इस्तेमाल होता है नहीं होता कि भाई हम भी 4-6 महीने फेटिफ को खैरबाद कहें, ये जो 50,000 अकाउंट हमने डंडे के ज़ोर पे बंद किए, इन्हें दोबारा एक्टिवेट करने का टारगेट दें, बिकॉज अब ब्लैक और वाइट क्या इकोनॉमी नहीं है भाई। हु इज़ गोइंग टू। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सानी, और बड़ा अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि अक्सर ये बात होती है कि जी इंटरेस्ट रेट कम कर दें, उससे इकोनॉमी चल पड़ेगी। अलमिया ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो कि डॉक्यूमेंटेड है वो तो बहुत छोटी सी है जिससे इसका इम्पैक्ट होता है। असल इकोनॉमी तो आपकी वो है जो डॉक्यूमेंटेड है ही नहीं, बिल्कुल, जो कि मुख्तलिफ किस्म के सेक्टर से एसोसिएटेड है, जो कि रिकॉर्ड पे ना टैक्स पे कर रहे हैं ना कुछ और कर रहे हैं। पहिया आपका वहां से बड़ा मेजर ड्राइव होता है। दैट्स द मेन स्टिमुलस। दैट्स द मेन स्टिमुलस। अब देखें, इसमें अगर दुनिया के हालात खराब हो गए ना कोविड-19 के अंदर, तो ये फैटअप वैटअप भूल जाएं आप। ये किसी भी मुल्क ने फैटअप की परवाह नहीं करनी, उसने सोचना है अपने घर के बारे में। सर हमने तो नहीं करनी चाहिए, उसूलन नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वो भी पॉलिटिकल था पहले भी, इट वाज ए पॉलिटिकल। एब्सोल्युटली इट वाज ए पॉलिटिकल, इट वाज ऑलवेज यूज्ड टू ट्विस्ट योर आर्म। और आज के हालात ये हैं कि आपको इस वक्त अपने बारे में सोचना है, बाहर को खुश करने के लिए क्या करना है वो बातें तब की जब हालात नॉर्मल होंगे और ऐसे एनवायरनमेंट हो कि जिसमें आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिले कि अच्छा जी अब हम दोबारा से इस चीज में सोचें। तो फैटअप है नहीं है ये इस वक्त इररेलेवेंट होना चाहिए जब तक कि आपको इस मसले को डील करना है। और मैं इसमें यह भी याद करता चलूं कि बहुत सारी तनकीद मैं देखता हूँ टीवी चैनल्स के ऊपर, प्रोग्राम्स के ऊपर, जो कि गवर्नमेंट पे होती है कि गवर्नमेंट ने ये ठीक नहीं किया, इनको ये कर देना चाहिए। वो कभी सेंट्रल बैंक के पीछे लग जाते हैं, कभी गवर्नमेंट के पीछे लग जाते हैं। याद रखें कि ये इतने एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस हैं कि हर बंदा अपना व्यू रख के बैठा हुआ है। मैं तो समझता हूँ कि गवर्नमेंट को क्रेडिट देना चाहिए कि गवर्नमेंट ने इसको अभी तक बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। देखिए उसमें कसर जरूर रहेगी क्योंकि परफेक्ट कोई सिस्टम नहीं होता, लेकिन अगर आप देखें कि ओवरऑल एक स्ट्रैटेजी बनी, इम्प्लीमेंट हुई, फाइनेंशियल साइड पे भी, इकोनॉमिक साइड पे भी,
और जिस तरीके से इस वक्त आपका मुल्क का वजीर आजम से लेके आपका Thank you, brother. जो एडवाइजर ऑन इकोनॉमी है, ऑन फाइनेंस मिनिस्ट्री हफीज शेख साहब, उसके अलावा सेंट्रल बैंक गवर्नर, उसके अलावा इवन ऑपोजिशन पार्टीज, जिस Right. तरीके से मेरे ख्याल में सिंध में लॉकडाउन किया गया, मेरे ख्याल में जरूरत थी कि ये लॉकडाउन किया जाता। Right. अगर ना किया जाता तो हम बहुत ही बुरी सिचुएशन में होते। So हमेशा Kamran question brother, I आता- have to cut you here. We are running off the time. I would need your 30-second view over the outlook of the market. Next 6 months, where do you see the market? देखिए, नेक्स्ट 6 मंथ्स वन हैज टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और आपका व्यू क्या है। Right. मैं स्ट्रिक्टली कॉशन करूंगा उन लोगों को जो कि डे ट्रेडिंग करते हैं और डे ट्रेडिंग करने में जिनके पास कैपेसिटी टू होल्ड नहीं होती, उनको इस मार्केट से दूर रहना चाहिए। अगर कैपेसिटी टू होल्ड है तो आप मीडियम से लॉन्ग टर्म व्यू के साथ यहाँ जो भी खरीदेंगे, प्रोवाइडेड कि ये लॉकडाउन या ये कोविड-19 की सिचुएशन 3 से 4 महीने में पाकिस्तान में रिजॉल्व हो जाती है, तो आप इंशाल्लाह उसमें बहुत अच्छे पैसे बनाएंगे। लेकिन अगर आप बहुत ही शॉर्ट टर्म अप्रोच से चले और आपके पैसे जितने नहीं है उससे आपने अपनी चादर से ज्यादा अपने पैर फैलाए और जाके इन्वेस्टमेंट्स किए इसको कैपेसिटी होल्ड करने के लिए, क्योंकि एक न्यूज जिस टाइम आपका ऑयल नीचे गिरेगा तो ऑटोमेटिकली मार्केट नीचे आएगी, वो पैनिक सेलिंग आ जाती है। इन सब से बचने की जरूरत है। ऑल दी फॉरेन जितने भी आपके लोकल इन्वेस्टर्स हैं ना उनको। Fantastic. So Kamran brother, thank you for your time. And again, आपने वक्त निकाला, मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। Thank you very much. बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, आज हमने बातचीत की कोरोना के पाकिस्तानी मईशत पर असरात और रेगुलेटर्स को और स्टेक होल्डर्स को इस सिलसिले में क्या क्या कुछ करना चाहिए। हमने इंटरनेशनल और लोकल एक्सपर्ट्स के व्यूज़ लिए। अगले हफ्ते मुलाकात होगी किसी नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।